A very good morning to all of you, ninth class. How are you all? Hi, this is your Archana Miss here, and I, Archana, welcome to your bio class. So, students, in our today's video, we will discuss a very interesting topic, that is second type of animal tissue, that is connective tissue. So, let's start without wasting our time. So children, our second type of animal tissue is connective tissue, and we have discussed the first type of animal tissue, that is epithelial tissue. So let's understand the meaning of connective tissue with the help of its definition. Okay, the cells of the connective tissue are widely spaced. So one of the most important feature of connective tissue is that the cells, जो cells हैं connective tissue के, वो widely spaced हैं. So widely spaced का मतलब है किसी भी body में या वो human body हो सकती है या animal body होती है, इन दोनों में से किसी की भी body है, उसमें जो connective tissue के cells हैं उन्होंने सबसे ज़्यादा जो है space cover की है, widely spaced and widely spread हैं वो, ठीक है, they are widely spaced. The basic function is to provide support and connect different organs. So the main function of connective tissue is to provide support and connect different organs. कनेक्टिव टिश्यू का जो मेन फंक्शन है, आप कनेक्टिव की मतलब से ही समझ सकते हैं, ये कनेक्ट करता है और सपोर्ट करता है डिफरेंट ऑर्गन्स को, ठीक है. So in simple language we can say that connective tissues are the tissues that bind together two or more tissues and organs. दो से एक या उससे ज़्यादा टिश्यू जो हैं वो कनेक्ट करता है या ऑर्गन्स को कनेक्ट करता है, ठीक है, और सपोर्ट करता है. ऐसे टिश्यूज़ को ही हम कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं, क्योंकि वो कनेक्ट करता है एंड सपोर्ट करता है. फर्दर देयर आर टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. Second type of animal tissues is connective tissue, and there is further subdivision of connective tissue. Connective tissue भी 4 types का है. First one is areolar tissue, and second is adipose tissue, and third is skeletal tissue, and fourth is fluid tissue. So these are the 4 types of connective tissue. We will discuss one by one this in our next page in detail. Before discussing these 4 types of connective tissue, I would like to tell you two important functions of connective tissue. जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, इसके जो है 2 important functions हैं. First one is they connect different tissues and organs. ये कनेक्ट करता है डिफरेंट टिश्यूज और ऑर्गन्स को. और सेकेंड जो है, दे प्रोवाइड दी स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क एंड सपोर्ट. ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है बॉडी को. तो ये 2 इंपॉर्टेंट फंक्शंस है कनेक्टिव टिश्यू के. So let's discuss these 4 types of connective tissue one by one. First type is areolar tissue. This tissue fills spaces inside organs and is found between the skin and muscles. जो areolar tissue है वो क्या करता है, organs के अंदर की जो space उनको fill करता है. और ये बेसिकली कहाँ पे फाउंड करता है, कहाँ पे पाया जाता है, स्किन एंड मसल्स और स्किन्स में प्रेजेंट होता है एरियल टिश्यू. एंड अराउंड ब्लड वेसल्स के अराउंड प्रेजेंट होता है, नर्व्स के अराउंड प्रेजेंट होता है, एंड इन द बोन मैरो. So this is all about areolar tissue. It fills spaces of inside organs and is found between the skin and muscles, around blood vessels, nerves, and in the bone marrow. Second type of connective tissue is adipose tissue. It is found below the skin around the heart. ये स्किन के नीचे पाया जाता है, अराउंड द हार्ट के अराउंड जो स्किन है उसके नीचे एडिपोस टिश्यू प्रेजेंट होता है. ब्रेन और ब्रेन के अराउंड प्रेजेंट होता है, एंड बिलो आईबॉल्स के बिलो प्रेजेंट होता है. इट
acts as an insulator. One of the most important feature of adipose tissue is ये किसकी तरह act करता है? As an insulator and prevents loss of heat from the body. और किससे बचाता है? Loss of heat. Heat loss तो नहीं हो रही है body से. So children, I would like to tell you one more important thing about adipose tissue, that is adipose tissue is a primarily a fat storing tissue. इसको हम fat storing tissue भी बोलते हैं, in which matrix is packed, जिसमें matrix pack किया जाता है. So matrix is a jelly like non-living material. matrix हम jelly like non-living material को बोलते हैं. So adipose tissue जो है वो एक फैट स्टोरिंग टिश्यू है इन विच मैट्रिक्स इज पैक, जिसमें मैट्रिक्स पैक होती है विद लार्ज स्फेरिकल और ओवल फैट सेल्स. ठीक है, लार्ज स्फेरिकल और ओवल फैट सेल्स होते हैं. ईच फैट सेल कंटेन्स अ लार्ज फैट ग्लोब्यूल. हर एक फैट सेल में लार्ज फैट ग्लोब्यूल प्रेजेंट होता है. ठीक है, और मैंने आपको बताया एडिपोज टिश्यू जो है वो बेसिकली फाउंड किया जाता है बीनीथ द स्किन, ओके, इन द कवरिंग ऑफ द हार्ट, अराउंड द ब्लड वेसल्स एंड किडनीज. So let's discuss third type of connective tissue, that is skeletal tissue. Okay. So children, skeletal tissue किसका बना होता है? Bone, ligaments, tendons and cartilage. इन 4 cells से जो है skeletal tissue बनता है. So we will discuss these 4 types of cells one by one. First one is bone. It forms the framework that supports the body. बोन जो बॉडी का फ्रेमवर्क बनाती है, एक फ्रेम प्रोवाइड करती है जो कि बॉडी को सपोर्ट करता है. अगर बोन्स ही नहीं होंगी तो हमारी बॉडी जो है वो सपोर्ट कैसे करेगी, वो कैसे चलेगी, वो कैसे वर्क करेगी. तो बोन जो है फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है और सपोर्ट करता है बॉडी को. इट इज नॉन फ्लेक्सिबल. अब बोन जो है नॉन फ्लेक्सिबल है, ये आप जानते हैं. हड्डियां जो हैं वो मुड़ नहीं सकती, उनमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है. ठीक है, मेड अप ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस कंपाउंड्स. बोन्स जो हैं वो कैल्शियम और फॉस्फोरस कंपाउंड्स की बनी होती हैं और ये नॉन फ्लेक्सिबल होती हैं. सो यू ऑल नो वेरी वेल दैट हमारा जो स्केलेटन है, एग्जाम्पल जैसे लिम्ब बोन्स हो गई, स्कल हो गया, वर्टिब्रल कॉलम, ये सब बोन्स के बने हुए हैं. ठीक है. सेकेंड टाइप ऑफ स्केलेटल टिश्यू इज लिगामेंट्स. सेकेंड टाइप है लिगामेंट्स. 2 bones connected to each other by ligament. So मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी 2 bones एक दूसरे के साथ कनेक्ट होती हैं with the help of ligament. This is very elastic. जो ligament है ये elastic in nature है. ये connective tissue है जो क्या करता है, एक बोन को दूसरी बोन के साथ कनेक्ट करता है. अगर मैं आपको एग्जाम्पल बताऊँ, हमारी फिंगर बोन्स आर कनेक्टेड बाय लिगामेंट्स. ये फ्लेक्सिबल भी हैं और ये एक बोन को दूसरी बोन के साथ जो है कनेक्ट करती हैं. सो चिल्ड्रन, मैं आपको डायग्राम के थ्रू बताती हूँ एक बोन दूसरी बोन के साथ कैसे कनेक्ट करती है. मान लीजिए ये एक बोन है और ये एक दूसरी बोन है और बीच में जो इसको कनेक्ट कर रहा है, दिस इज कॉल्ड लिगामेंट. एक बोन दूसरी बोन के साथ कनेक्ट हो रही है, उसी को हम कहेंगे लिगामेंट. सो मेन फीचर जो है लिगामेंट्स का, दिस इज वेरी इलास्टिक. दिस टिश्यू इज वेरी इलास्टिक इन नेचर. जैसे हमारे हाथ हैं, फिंगर्स हैं, ये मूव होते हैं, ये इलास्टिक इन नेचर है. थर्ड इज टेंडन्स. इट कनेक्ट्स मसल टू बोन्स. जैसे लिगामेंट्स बोन टू बोन कनेक्ट करती है, बट टेंडन्स कनेक्ट्स मसल टू बोन्स. टेंडन इज ए कनेक्टिव टिश्यू विच कनेक्ट्स मसल्स टू बोन्स. अगर मैं आपको एग्जाम्पल बताऊँ, मसल्स ऑफ लिम्स आर कनेक्टेड टू लिम्ब बोन्स बाय टेंडन्स. जो लिम्स के मसल्स हैं वो कनेक्ट करते हैं टू लिम्ब बोन्स बाय टेंडन्स. टेंडन्स की हेल्प से जो है मसल्स कनेक्ट होते हैं बोन्स के साथ. सो लिगामेंट्स और टेंडन्स में यही डिफरेंस है. लिगामेंट्स कनेक्ट करता है बोन टू बोन, बट टेंडन्स मसल टू बोन्स कनेक्ट करते हैं. सो चिल्ड्रन, स्केलेटल टिश्यू की 4 टाइप है. कार्टिलेज. दिस इज इलास्टिक, less harder to other bones.
कार्टिलेज जो है ये इलास्टिक इन नेचर है और लेस हार्डर है एज कम्पेयर टू अदर बोन्स. इट इज़ composed ऑफ प्रोटीन्स एंड शुगर. कार्टिलेज प्रोटीन्स और शुगर की बनी हुई है. इट इज़ प्रेजेंट इन नोज, ईयर एंड लैरिक्स. एज इट इज़ इलास्टिक, सो ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है? हमारे नोज में, हमारे ईयर में एंड हमारे लैरिक्स में. जैसे कि आप जानते हैं हमारे नोज़ की जो बोन्स हैं, हमारे ईयर जो हैं, वो हम उसको जो है फोल्ड कर सकते हैं, उसको मूव कर सकते हैं, उसको बेंड कर सकते हैं. तो उसमें ऐसी बोन्स प्रेजेंट हैं जो कि इलास्टिक हैं, तो वो बोन है कार्टिलेज. उसको हम बोलते हैं कार्टिलेज. तो कार्टिलेज प्रेजेंट है हमारे नोज, ईयर, लैरिक्स में एंड ट्रैकिया, यहाँ पे ये प्रेजेंट होती है. ये बेसिकली कंपोज बनी हुई है प्रोटीन्स एंड शुगर की. So let's discuss our fourth type of connective tissue, that is fluid or vascular tissue. जिसको हम blood भी कहते हैं और blood cells कह सकते हैं. Blood helps in transportation of many substances like gases, hormones, etc. As you all know that the blood which is present in our body helps in transportation of many substances. Blood है तो हम survive कर रहे हैं. Blood ही जो है वो transportation में help करता है. Gases, hormones. It helps in transportation of digested food. It helps in the process of excretion. It regulates the body temperature. So blood के कई roles हैं हमारी body में. Basic role इसका है कि transportation में help करता है. ठीक है. Blood has a fluid matrix called plasma. Blood में fluid matrix present होता है. So blood has a fluid matrix called plasma. उस fluid matrix को बोलते हैं plasma, in which RBCs, WBCs, platelets are suspended. जिसमें प्लाज्मा में क्या प्रेजेंट होता है? RBCs, रेड ब्लड सेल्स प्रेजेंट होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स प्रेजेंट होती हैं जिसको हम WBCs कहते हैं, एंड प्लेटलेट्स आर सस्पेंडेड. इट ऑल्सो कंटेन्स प्रोटीन्स, सॉल्ट्स एंड हॉर्मोन्स. जो ब्लड में फ्लूइड मैट्रिक्स है जिसको हम प्लाज्मा बोलते हैं, उसमें प्रोटीन, सॉल्ट्स एंड हॉर्मोन्स भी प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. So let's talk about RBCs, that is red blood cells. It contain red colored respiratory pigment called hemoglobin. RBCs में रेड कलर का रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं हीमोग्लोबिन. दैट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन. जो हीमोग्लोबिन जो है रेस्पिरेटरी पिगमेंट आरबीसीज में प्रेजेंट होता है जो कि रेड कलर का होता है, वो किस में हेल्प करता है? दैट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन. वो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, दैट्स वाई इट्स हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैस, दैट इज ऑक्सीजन. Second is WBCs. They protect our body by harmful bacteria. WBCs हमें जो भी हमारी बॉडी में हार्मफुल बैक्टीरिया अगर कोई प्रेजेंट है उससे हमें प्रोटेक्ट करता है, उसको किल करता है और हमारी बॉडी को बचाता है. प्लेटलेट्स, इट इन्वॉल्व इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड. प्लेटलेट्स जो है क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में हेल्प करता है. इन्वॉल्व जो होता है वो किस में? क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में. सो दिस इज ऑल अबाउट द 4 टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, दैट इज फ्लूइड वेस्कुलर टिश्यू, और वी कॉल इट ब्लड. ठीक है, वी कॉल इट ब्लड टिश्यू और ब्लड सेल्स.